ओके चलिए बच्चों, एडिशनल एक्सरसाइज मैग्नेटिज्म एंड मैटर क्वेश्चन नंबर 21 से आगे बढ़ेंगे। एंड दैट क्वेश्चन नंबर 21 जो आप देख पा रहे हो, दैट क्वेश्चन इज अ मैग्नेटिक डाइपोल is under influence of two magnetic fields. So there are two magnetic fields, right? Okay, the angle between the field direction is 60 degree and one of the field has a magnitude of 1.2 into 10 power minus 2 Tesla. So there are two magnetic fields given, okay, and they both are at an angle of 60 degree with each other. So let us consider this is the first magnetic field B1, this is other magnetic field B2, and these both magnetic fields are at angle of 60 degree. Out of this two given field, one of the field is at an have a magnitude 1.2 into 10 power minus 2 टेस्ला. तो मान लेते हैं कि B1 आपको दिया हुआ है 1.2 into 10 power minus 2 टेस्ला. ये पहला मैग्नेटिक फील्ड आपको दे दिया है, ठीक है. चलिए और पूछा क्या है वो देखते हैं. If the dipole comes to stable equilibrium at an angle of 15 degree with this field, what is the magnitude of the other field? Right, so there is a magnetic dipole. When that magnetic dipole is placed in this combined magnetic field that remain in equilibrium at an angle of 15 degree with this field, जिसका वैल्यू आपको दिया है. तो हमने B1 का वैल्यू ले लिया है. तो मैग्नेटिक डाइपोल का मतलब है एक बार मैग्नेट. तो वो बार मैग्नेट जो है ना, it remains in equilibrium at an angle of 15 degree with the field, जिसका वैल्यू आपको दे दिया है. So you want to find कि ये दूसरा magnetic field B2 कितना होगा. That is what your question is, and the question is very simple. See, very simple thing is when you will put a magnetic dipole or a bar magnet in a uniform magnetic field at some angle, it is going to experience the torque. What will it experience? It will definitely experience the torque, right? As there are two different magnetic fields, so both magnetic fields are going to apply the torque on this bar magnet. And if the bar magnet is in equilibrium, that means torque applied by both the bar magnet should be equal and in opposite direction. So that is what you are going to use. So we will write here as bar magnet or magnetic needle, you can write, okay, as the bar magnet is placed in two magnetic fields, both fields are going to apply torque on it, okay, and I can write in stable equilibrium of this magnetic dipole. In stable equilibrium of this magnetic dipole, you can write the resultant torque acting on it must be 0. Resultant torque acting on it must be 0. Right, resultant torque must be 0. So resultant torque means here both are going to apply the torque. So you can write torque due to magnetic field 1 is equal to torque due to magnetic field 2. चलिए बच्चों, मैग्नेटिक डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, टॉर्क कितना लगता है? टॉर्क लगता है mb sin थीटा. ओके, हियर आई विल राइट b1 एंड थीटा 1. ओके, मैग्नेटिक मोमेंट तो बाहर मैग्नेट तो वही रहने वाला है, सो वी विल नॉट गिव एनी सिंबल टू मैग्नेटिक मोमेंट, राइट. चलिए यहाँ पे mb sin थीटा, गिव इट नेम एज 2, राइट. मैग्नेटिक मोमेंट इज गोइंग टू कैंसल, राइट. चलिए b1 वैल्यू वी हैव, दैट इज 1.2 into 10 power minus 2 sin theta 1. So this bar magnet is making an angle of 15 degree with the first magnetic field. B2 तो find करना है, sin theta 2. Okay, if both the magnetic fields are at angle of 60 degree, so if this angle is 15, definitely this angle is going to be 45 degree. That is theta 2. This is theta 1. Let's put it here. B2 sin 45 degree, right? Okay, चलिए. Now what is the value of sin 15 degree? Let me write it here. Sin 15 degree is 0.2588. 0.2588 is equal to B2 into sin 45. तो आपको पता है 1/√2. चलिए आप इसको जैसे ही सिंप्लीफाई करोगे बच्चों, आपका B2 का वैल्यू आ जाएगा 4.4 into 10 power minus 3 टेस्ला. 4.4 into 10 power minus 3 Tesla, right? That means the other magnetic field must be having this magnitude, then only this magnetic dipole can remain in equilibrium at 15 degree with the given field. चलिए कॉपी करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन था, क्विकली कॉपी करो. Okay,
So question number 22, you can consider this as a very important question, and the question is a monoenergetic 18 kilo electron volt electron beam initially in the horizontal direction is subjected to the magnetic field of 0.4 Gauss normal to the initial direction. Estimate the up or down deflection of the beam over a distance of 30 centimeter. तो चलिए आप क्वेश्चन समझिए बच्चों. there is a beam of electron, right, which is traveling horizontally, right, and you are also applying the horizontal magnetic field which is perpendicular to this. तो अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ रहा है ना तो हम horizontal field ऐसे लगा रहे हैं, right. This is also horizontal direction and this will be perpendicular to the velocity of electron, right. So I am applying the magnetic field which is going inside the plane of paper. Consider this is the magnetic field, right. Fine. Now we know that whenever any charge particle enter perpendicular to the magnetic field, any charge particle will enter perpendicular to the magnetic field, it performs circular motion, right. क्या करेगा बच्चों, वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा. आपको ये फाइंड करना है इलेक्ट्रॉन कितना डिफ्लेक्ट होगा. तो हम क्या करेंगे, वी विल जस्ट ड्रॉ द सर्कुलर पाथ फॉर द इलेक्ट्रॉन. द इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू परफॉर्म अ सर्कुलर पाथ एंड वी आर ओनली गिवन द मैग्नेटिक फील्ड इज अप टू द डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर. मतलब 30 सेंटीमीटर में इलेक्ट्रॉन कितना डिफ्लेक्ट होगा ये हमें फाइंड करना है, राइट. मतलब मैग्नेटिक फील्ड का जो रीजन है ना वो खाली 30 सेंटीमीटर का ही है. मैग्नेटिक फील्ड का रीजन कितना लेना है, 30 सेंटीमीटर लेना है, राइट. अभी जरूरी नहीं है कि भाई 30 सेंटीमीटर मिला है तो इलेक्ट्रॉन पूरा सर्कल काट ही लेगा. ओके तो हम पहले ये फाइंड करेंगे कि इलेक्ट्रॉन का जो सर्कुलर मोशन होने वाला है उसका रेडियस कितना है. ओके क्या फाइंड करेंगे, पहले इलेक्ट्रॉन का जो सर्कुलर मोशन होगा उसका रेडियस कितना है. फिर हम कंपेयर करेंगे कि वो रेडियस इससे बड़ा आ रहा है इससे छोटा आ रहा है, बिकॉज बहुत सारे आंसर आपके उसके ऊपर बेस्ड होंगे, राइट. तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे. बस सबसे पहले आपको दिया है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम. एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम आपको दिया है, दैट इज समवॉट 18 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब मुझे चाहिए होगा इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी, तो मैं लिख दूंगा एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर. सो आई विल राइट दिस E इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर. 18 into kilo is 10 power 3. Electron is 1.6 into 10 power minus 19. ये हो गया आपका जूल में कन्वर्ट, राइट. यू कैन पुट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आपको दिया है क्वेश्चन में, कितना दिया है भाई, 9.11 into 10 पावर 9. एक मिनट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.11 into 10 पावर माइनस 31 kg होना चाहिए. गलत क्यों दिया है, वेट अ सेकंड. It is 9.1 into 10 power minus 19 kg. How is it possible? No, it is 9.1 into 10 power minus 31 ही होगा. एक सेकंड ना, चेक करना पड़ेगा इसको. ओके मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विल पुट 9.1 into 10 power minus 31 kg into v square, that is equal to 18 into 10 power 3 into 1.6 into 10 power minus 19. चलिए अब आपको इसको सॉल्व करना है. आप जैसे इसको सॉल्व करोगे ना तो आपका वेलोसिटी का वैल्यू आ जाएगा 0.795 into 10 power 8, राइट. योर वेलोसिटी वैल्यू विल बी 0.795 into 10 power 8 मीटर पर सेकंड. दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट. इतना आपको वेलोसिटी मिला इलेक्ट्रॉन का. अब हमें पता है कि व्हेन द इलेक्ट्रॉन और एनी काइंड ऑफ अ चार्ज पार्टिकल मूव्स परपेंडिकुलर इन द मैग्नेटिक फील्ड, इट विल परफॉर्म सर्कुलर मोशन. सो आई विल राइट हियर, ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन in perpendicular magnetic field, it perform circular motion. ओके चलिए बच्चों, सर्कुलर मोशन है तो सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपेटल फोर्स चाहिए. ओके हु विल प्रोवाइड द सेंट्रीपेटल फोर्स, mv स्क्वायर बाय r इज प्रोवाइडेड बाय द मैग्नेटिक फोर्स एंड वी नो दैट मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल, राइट, कितना होता है बच्चों वो QVB. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, EVB. व्हाट विल वी राइट, वी विल राइट दिस एस EVB, राइट. हम क्या लिखेंगे, इसको EVB लिखेंगे, ठीक है ना. चलिए क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, इसको एक एक V कट कर दो. व्हाट यू विल गेट द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इज इक्वल टू mv by EB. रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इज mv by EB. चलिए सारे वैल्यू डालते हैं, ठीक है ना. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 into 10 पावर minus 31. वेलोसिटी आया है 0.795 into 10 पावर 8.
चार्ज है इलेक्ट्रॉन का 1.6 इंटू 10 पावर -19 एंड मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना दिया था भाई? मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया हुआ है, ये तो हमने फाइंड नहीं, कितना दिया है? 0.4 गॉस। दिस मैग्नेटिक फील्ड इज 0.4 गॉस, गॉस इज 10 पावर -4 टेस्ला, ये आपको दे दिया राइट। मैग्नेटिक फील्ड दैट इज 0.4 इंटू 10 पावर -4 टेस्ला। चलिए इसको सॉल्व करने पे सर्कुलर मोशन का रेडियस आने वाला है 11.3 मीटर। कितना रेडियस आएगा भाई? 11.3 मीटर रेडियस आएगा। द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर पाथ इज 11.3 मीटर, बट अपने तो अपने को रिफ्लेक्शन खाली 30 सेंटीमीटर के रीजन में ही निकालना है ना, राइट। मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पूरा चक्कर काटने वाला नहीं है, पूरा चक्कर कटे उसके पहले ही वो फील्ड में से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि पूरा चक्कर कब कटेगा? जब आपका मैग्नेटिक फील्ड का जो रीजन है ना वो 11.3 मीटर से बड़ा है। अगर मैग्नेटिक फील्ड का रीजन 11.3 मीटर से बड़ा होगा ना तो फिर वो पूरा चक्कर काट के ऐसे बाहर आएगा, बट क्योंकि आप लोग को तो खाली 30 सेंटीमीटर ही चाहिए ना, मतलब पूरा सर्कल कंप्लीट होने वाला नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे विच इज मोर देन 30 सेंटीमीटर, राइट। तो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे डिफ्लेक्शन कितना होगा इलेक्ट्रॉन का, डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमें फाइंड करना है। चलिए बहुत सिंपल है बच्चों, थोड़ा सा मैथ्स यूज करना है आपको, राइट। देखिए चलिए क्या करने वाले हैं हम, अब जो भी करना है आपको फिगर में ही करना है, राइट। तो इलेक्ट्रॉन जो है सपोज ये पाथ से बाहर निकला यहां से, तो डिफ्लेक्शन इज दिस वन, चल जा, ओके। दिस इज द डिफ्लेक्शन x जो आपको फाइंड करना है, दिस इज द डिफ्लेक्शन x जो आपको फाइंड करना है, राइट। क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां से आया था, राइट, और फिर ऐसे निकलने वाला है, मतलब इतना उसका डिफ्लेक्शन हुआ है, ओके। ये जो भी आपका पूरा सर्कल सपोज बनेगा तो उसका सेंटर सपोज यहां पर है, जो पूरा सर्कल बनेगा, लेट्स से दिस इज द सेंटर ऑफ दैट सर्कल, राइट, ओके। एंड दिस इज गोइंग टू बी द रेडियस, क्या बनेगा भाई? उसका रेडियस बनने वाला है ये r, ओके। आपको ये x निकालना है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे भी आप जब लिखोगे बच्चों, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी द रेडियस r, राइट। कितना होगा भाई? ये भी आपका रेडियस r होने वाला है। चलिए एक लाइन यहाँ से परपेंडिकुलर खींचो, राइट, ठीक है ना, ओके। तो एक सिंपल सी बात ये है बच्चों कि आपका ये जो रीजन बनेगा ना, और इज दिस रीजन r-x, क्या बनना है भाई? ये रीजन आपका r-x, पूरा आपका r है, पूरा आपका r है, राइट। ये आपका डिफ्लेक्शन है x, इतना वैल्यू, यू कैन चेक इट आउट, दिस इज x। तो ये बाकी बचा वैल्यू क्या होगा? डेफिनेटली बाकी बचा वैल्यू होगा आपका r-x होगा, जो बाकी बचा वैल्यू है, और आपको ये x निकालना है, राइट। चलिए बच्चों मान लीजिए कि यहाँ पे आप कहीं एंगल ले लीजिए, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, राइट। कितना है बच्चों? ये एंगल आपका थीटा है, राइट। चलिए तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल सा साइन लगाते हैं, राइट। तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे यहाँ पे मिल जाएगा साइन थीटा। इस ट्राइंगल में देखो भाई, तो साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड दैट इज r-x बाय हाइपोटेनस दैट इज r। तो साइन थीटा इज इक्वल टू r-x बाई r। साइन थीटा क्या होगा भाई? यहाँ पे आपका साइन थीटा होने वाला है, साइन थीटा इज इक्वल टू r-x बाई r, ठीक है। चलिए बच्चों आपके पास क्या साइन थीटा का वैल्यू है? नहीं, आपके पास r का वैल्यू है, बट डू यू हैव द वैल्यू ऑफ साइन थीटा फ्रॉम हियर? नो, बट वी कैन हैव द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। हमारे पास यहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू है, कैसे? तो ये डिस्टेंस मेरे पास है ना, आई ऑलरेडी हैव दिस डिस्टेंस दैट इज 30 सेंटीमीटर, राइट। दिस डिस्टेंस वी हैव दैट इज 30 सेंटीमीटर, दैट इज 0.3 मीटर। 30 सेंटीमीटर कितना होगा भाई? दिस इज द वैल्यू विच वी हैव दैट इज 0.3 मीटर, ओके। तो मेरे पास इस ट्राइंगल के लिए cos थीटा मिल जाएगा ना, cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनस दैट इज r, राइट। तो हमारे पास cos थीटा है, ओके। तो हम क्या करेंगे बच्चों, sin थीटा की जगह क्या लिखेंगे? sin थीटा आपको पता होना चाहिए दैट इज 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, है कि नहीं? sin थीटा क्या होता है भाई? सिंपल ट्रिग्नोमेट्री आता है ना, sin थीटा इज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। नहीं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा पता है? आपको एंगल वेंगल फाइंड करने पड़ेंगे टेबल देख के, पर हम एंगल फाइंड नहीं करेंगे, हम cos थीटा दिया है ना, cos के ऊपर से sin निकाल लेंगे। चलिए बच्चों दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, स्क्वायर नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेट्स कीप इट एज इट इज 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। चलिए cos थीटा कितना है भाई? 0.3 बाई r, r कितना आया है? 11.3। दिस इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा, लेट्स पुट इट हियर, 0.3 बाई 11.3 का स्क्वायर दैट इज r माइनस x बाई r, ओके। चलिए इतना लिखिए, फिर आगे और सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको, राइट इट क्विकली। चलिए तो ये वैल्यू आएगा आपका अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वो जो वैल्यू है ना पीछे दैट इज 0.0007, दैट इज इक्वल टू r का वैल्यू कितना है? 11.3 माइनस x डिवाइड बाई 11.3, राइट। चलिए इसको सॉल्व करते हैं फटाफट, कितना आएगा बता दो आपको, कहाँ गया m माइनस साइन?
ओके, अंडर रूट निकालेंगे उसका, दिस इज गोइंग टू कम एज 0.99964, दैट इज 11.3 माइनस एक्स डिवाइड बाई 11.3। चलिए इसको इंटू करेंगे, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको। चलिए ये आएगा आपका 11.296, दैट इज इक्वल टू 11.3 माइनस एक्स, एक्स को सामने ले लो, देखते हैं कितना आंसर आता है वो। चलिए ये आएगा बच्चों आपका 0.00398 मीटर, दैट यू कैन राइट एज 3.98 इंटू 10 पावर माइनस 3 मीटर, दैट इज 3.98 मिलीमीटर, राइट। तो इलेक्ट्रॉन बीम का 30 सेंटीमीटर में कितना डिफ्लेक्शन होगा? 3.98 mm जितना इलेक्ट्रॉन बीम का डिफ्लेक्शन होगा, राइट। कितना डिफ्लेक्शन होगा इलेक्ट्रॉन बीम का? 3.98 mm जितना डिफ्लेक्शन होगा, राइट। दिस इज डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम। व्हाट इज इट? डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम। दैट वाज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। वापस एक बार फटाफट देख लेंगे। पहले इलेक्ट्रॉन का आपको एनर्जी दिया था, वहां से हमने वेलोसिटी निकाला। देन वी नो दैट व्हेन इलेक्ट्रॉन परफॉर्म when electron enter perpendicular to the magnetic field, it always performs circular motion. So for that circular motion we found the radius, right? And then we want to find the deflection. तो चेक करते हैं डिफ्लेक्शन कितना हुआ। तो इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे बाहर निकल गया तो दिस इज द डिफ्लेक्शन व्हेन इट कम आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब ये x आपको फाइंड करना है, ये आपका r का वैल्यू है। अब बाकी जो है ना बच्चों, आपको फिगर से ट्रिग्नोमेट्री यूज करके सॉल्व करना रहेगा, ठीक है ना। चलिए मैंने सारे स्टेप्स आपको यहाँ पे बता ही दिए हैं, एंड आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू। चलिए बाकी पार्ट कंप्लीट करिए कैलकुलेशन का क्विकली। Fine. So the next question is question number 23, and that is one of the most important question from entire exercise, right? Most important question you can say. क्या कहा है देखो बच्चों, a sample of a paramagnetic salt। तो मुझे पहला हिंट मिला है paramagnetic salt है ये। There is a substance paramagnetic, right? चलिए paramagnetic का salt मिला है। फिर it contains 2 into 10 power 24 atomic dipole, each of the dipole moment 1.5 into 10 power minus 23 जूल पर टेस्ला। चलिए तो उसके अंदर कितने atomic dipoles है? So we are given that atomic dipoles, let's give it name as n. The number of atomic dipole is 2.0 into 10 power 24, okay, and each has the dipole moment, let's write small m। हर एक का magnetic dipole moment दिया है, राइट। हर एक एटम का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट स्मॉल m इज गिवन, विच इज 1.5 इंटू 10 पावर माइनस 23 जूल पर टेस्ला, ओके। चलिए द सैंपल इज प्लेस्ड अंडर द होमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.64 टेस्ला। मतलब हम क्या कर रहे हैं, मटेरियल को मैग्नेटाइज कराना चाहते हैं, एंड वी आर पुटिंग दैट मटेरियल इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड विच इज 0.64 टेस्ला, राइट। सो आई कैन राइट हियर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड is 0.64 टेस्ला। चलिए अब क्या कहा है, एंड कूल टू द टेम्परेचर ऑफ 4.2 केल्विन। चलिए मटेरियल का टेम्परेचर कितना रखना है? 4.2 केल्विन, राइट। द डिग्री ऑफ मैग्नेटाइजेशन, डिग्री ऑफ मैग्नेटिक सेचुरेशन अचीव्ड इज इक्वल टू द 15%। चलिए कितना मैग्नेटिक सेचुरेशन आपको मिला भाई? तो मैग्नेटिक सेचुरेशन अटेन्ड इज 15%। आपको 15% सेचुरेशन मिला मटेरियल के अंदर। चलिए आपको क्या पूछा गया है बच्चों, व्हाट इज द टोटल डाइपोल मोमेंट ऑफ द सैंपल फॉर अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.98 टेस्ला। क्वेश्चन है व्हाट इज द नेट मैग्नेटिक मोमेंट फॉर मैग्नेटिक फील्ड 0.98 टेस्ला एंड द टेम्परेचर ऑफ 2.8 केल्विन। तो आपको बच्चों एक बात तो क्लियरली समझ में आ जानी चाहिए कि आपको दो अलग अलग कंडीशन दिया हुआ है, राइट। इनिशियल कंडीशन में दिस वाज द मैग्नेटिक फील्ड, दिस वाज द टेम्परेचर, सो लेट्स गिव इट नेम एज B1, लेट्स गिव इट नेम एज T1, राइट। एंड देन यू आर चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड टू 0.98 टेस्ला, दैट इज B2, एंड द टेम्परेचर इज ऑल्सो चेंज, लेट्स गिव इट नेम एज T2, राइट। तो ये आपका पूरा जो है ना बच्चों वो कंडीशन नंबर 1 है। दिस थिंग्स, दिस इज एंटायर इज कंडीशन नंबर 1 एंड दिस इज द कंडीशन नंबर 2 जो आपको फाइंड करना है, राइट। तो सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन में आपको एक हिंट दिया है कि मैग्नेटाइजेशन कितना हुआ। आपने पैरामैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा, टेम्परेचर कम किया, इससे उसको 15% मैग्नेटाइजेशन मिला। मतलब जो सैचुरेशन होना चाहिए ना उसका 15% जितना ही हो रहा है मैक्सिमम, राइट। सो वी विल राइट हियर दैट इन फर्स्ट कंडीशन magnetization achieved
is 15% of saturation, right? 15% is 0.15, right? Now what is the total magnetization? So there are how many number of magnetic dipoles present? So magnetic dipoles are 2 into 10 power 24 और हर एक का मैग्नेटिक मोमेंट दिया है 1.5 into 10 power minus 23. तो मैक्सिमम का मतलब क्या होगा? मैक्सिमम का मतलब होगा जब ये सारे के सारे एटॉमिक डाइपोल एक ही डायरेक्शन में अरेंज हो जाए, राइट? देन यू विल गेट द मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन. बट यहाँ पे उसका 15% ही दिया है, सो वी विल राइट देयर इज 15% ऑफ मैक्सिमम. इसका मतलब है बच्चों मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच एटम इनटू नंबर ऑफ एटम, राइट? इसका इतना आपको स्टार्टिंग में मिला है, राइट? तो लेट्स फाइंड इट आउट कितना हो रहा है. 0.15, हर एक का मोमेंट है 1.5 into 10 power minus 23 एंड नंबर ऑफ मोमेंट्स आर 2 into 10 power 24, राइट? चलिए बच्चों, जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू बी देयर. 0.15 into 1.5 into 2, that is 0.45. This is 0.45 into 10 power 1, that is 4.5. Right, this is magnetization, राइट? चलिए यूनिट क्या होगा भाई मैग्नेटाइजेशन का? तो मैग्नेटाइजेशन का यूनिट भी वही होगा, जूल पर टेस्ला, राइट? द यूनिट ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज जूल पर टेस्ला, ठीक है? चलिए तो फर्स्ट कंडीशन की बात हो गई ना. अब आपको ये पूछा है कि सेकंड कंडीशन के अंदर मैग्नेटाइजेशन कितना होगा. तो ये फर्स्ट कंडीशन का मैग्नेटाइजेशन है, लेट्स गिव इट नेम एज M1. अब क्योंकि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस से बात किया गया है मैग्नेटिक फील्ड और टेम्परेचर का, तो मैं बहुत सिंपल सा एक लॉ यूज करूंगा, दैट इज क्यूरीज लॉ. Which law will we use? We are going to use the Curie's law. So we will write here Curie's law for paramagnetic substance. Applying Curie's law for paramagnetic substance. And I hope कि आपको Curie's law याद है. And the Curie's law was magnetization is equal to C into B by T. The Curie's law was magnetization is C into B by T. So you can write here M1 by M2 is equal to C into B1 by T1, C into B2 by T2. दोनों कंडीशन के लिए फॉर्मूला रख के रेशियो ले लिया उसका, राइट? C तो कांस्टेंट है, वो तो कटी हो जाने वाला है. सो नाउ लेट्स पुट द वैल्यूज. M1 by M2 इज इक्वल टू B1 by T1 इंटू T2 by B2. ये T2 ऊपर आएगा ना. ओके, नाउ यू हैव ऑल द वैल्यूज. लेट्स पुट द वैल्यूज एंड दैट लेट्स सी व्हाट विल बी द आंसर. M1 कितना है? M1 इज 4.5. M2 फाइंड करेंगे. B1 पहले कितना मैग्नेटिक फील्ड था? 0.64. पहले कितना टेम्परेचर था? 4.2. चलिए फाइनली टेम्परेचर कितना हुआ? 2.8 एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 0.98. 2.8 एंड 0.98. चलिए सॉरी, अब जैसे आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों, सो लेट मी टेल यू आपका आंसर कितना आएगा. योर आंसर इज गोइंग टू बी 10.335. कितना आंसर आएगा भाई? आपका आंसर आएगा 10.335 जूल पर टेस्ला. दिस इज द मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन इन द सेकंड कंडीशन जो आपको दिया गया है, राइट? तो पहले मैंने फर्स्ट कंडीशन को यूज करना है किसके अंदर? क्यूरीज लॉ में. वी रिक्वायर द मैग्नेटाइजेशन. तो यहाँ पे हिंट दिया है मैग्नेटाइजेशन इज 15% ऑफ सैचुरेशन. सैचुरेशन का मतलब है एटॉमिक डाइपोल मोमेंट्स इनटू टोटल नंबर ऑफ एटम. इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 100% मैग्नेटाइजेशन, बट यू आर ओनली गिवन विथ 15% ऑफ दैट. So use it 15% of magnetization, right? You will get the M1 value, then use the Curie's law and then just put the value, so you'll get the answer. This is very important question for exam. Copy this question quickly everyone. Okay, question number 24. A Rowland ring of mean radius 15 centimeter. Rowland ring is basically toroid, right? So we have the question of Rowland ring. This is toroid. And this toroid has a mean radius. The mean radius of a toroid is 15 centimeter, that is 0.15 meter, and has 3500 turns of the wire wound on a ferromagnetic core of relative permeability 800. So we have given number of turn as 3500. और जो कोर है ना अभी वैक्यूम नहीं है. आपने आगे वाले चैप्टर के अंदर जो टोरॉइड किए थे या सोलेनॉइड किए थे उसके अंदर वैक्यूम रहता था, राइट? बट राइट नाउ वी आर यूजिंग अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, राइट? कोर जो है ना बच्चों वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, एंड यू शुड नो दैट कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या करता है? फील्ड को अपने अंदर खींच लेता है और इससे मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी बढ़ेगा. तो आपको जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस दिया है उसका रिलेटिव परमिएबिलिटी दिया है बच्चों 800. कितना दिया है? रिलेटिव परमिएबिलिटी 800 दिया है. यू शुड नो दैट रिलेटिव परमिएबिलिटी इज द रेशियो ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम बाय परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम. दिस रेशियो इज गिवन टू यू व्हिच इज 800. चलिए क्या फाइंड करना है?
व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड इन द कोर ऑफ द मैग्नेटाइजिंग करंट 1.2 एम्पियर। तो करंट कितना पास करना है 1.2 एम्पियर, यू वांट टू फाइंड व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड। तो मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये आपको फाइंड करना है। चलिए क्या करेंगे बच्चों, देखते हैं। सो वी विल यूज अ वेरी सिंपल फॉर्मूला, मैग्नेटिक फील्ड इन द कोर ऑफ टोरॉइड, मैग्नेटिक फील्ड इन द कोर ऑफ टोरॉइड, वेरी सिंपल फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था, दैट इज म्यू 0 इंटू NI। हमने ऐसा पढ़ा था, म्यू 0 तब होता है जब बीच में वैक्यूम हो, बट यहाँ पे वैक्यूम नहीं है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, तो इंस्टेड ऑफ म्यू 0 वी हैव टू राइट म्यू। म्यू इज द परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल। म्यू क्या है, म्यू इज द परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ कोर, राइट। चलिए बच्चों म्यू कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो बच्चों आपका म्यू कितना हो जाएगा, म्यू इक्वल टू म्यू आर इंटू म्यू 0। सो म्यू इज म्यू आर इंटू म्यू 0 इंटू NI। चलिए म्यू आर दिया है 800, म्यू 0 इज 4 पाई इंटू 10 पावर -7। नंबर ऑफ टर्न, व्हाट इज स्मॉल n, स्मॉल n इज नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, दैट इज गोइंग टू बी n अपॉन 2 पाई r, क्योंकि टोरॉइड जो है ना वो सर्कल के फॉर्म में होता है ना, टोरॉइड कॉइल होता है, तो उसका लेंथ कितना होगा 2 पाई r होगा, राइट। दिस स्मॉल n इज नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ इनटू करंट, करंट इज 1.2 एम्पियर, राइट। ओके 800 इंटू नंबर ऑफ टर्न 3500, 2 पाई रेडियस इज 0.15 इंटू 1.2। चलिए बाकी काम तो आपका कैलकुलेटर कर ही लेगा, और जैसे ही आपका कैलसी चलेगा ना तो आपका आंसर आएगा 4.48 टेस्ला। सो द मैग्नेटिक फील्ड इज 4.48 टेस्ला, राइट। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टोरॉइड इज 4.8 टेस्ला, इतना मैग्नेटिक फील्ड होगा। चलिए कॉपी करेंगे क्विकली। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25। मैंने क्वेश्चन लिख दिया पूरा बोर्ड के ऊपर। क्वेश्चन में कुछ ऐसा है कि देयर इज अ मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू द स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। राइट, इलेक्ट्रॉन के पास दो अलग अलग मोशन की वजह से एंगुलर मोमेंटम होगा। एक होगा ड्यू टू द ऑर्बिटल मोशन, राइट, अराउंड द न्यूक्लियस, और दूसरा होगा ड्यू टू द स्पिन ऑन इट्स ओन एक्सिस। दोनों की वजह से उसके पास अपना मैग्नेटिक मोमेंट होता है, राइट। सो मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू द स्पिन मोशन इज गिवन बाय -E/m इनटू स्पिन, एंड एंगुलर मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू द एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम मतलब जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आजू बाजू घूमता है उसकी वजह से उसको जो एंगुलर मोमेंटम की वजह से जो उसको मैग्नेटिक मोमेंट मिलना है, दैट इज -E/2m इंटू L। L इज एंगुलर मोमेंटम, राइट। चलिए अब ये कहा है कि ये दोनों फॉर्मूला जो है ना, दिस बोथ फॉर्मूलाज आर बोथ दिस फॉर्मूलाज आर प्रेडिक्टेड बाय एज वेल एज प्रूवन बाय द क्वांटम मैकेनिक्स। तो दोनों में से ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो क्लासिकल मैकेनिक्स भी प्रूव कर सकता है? तो आपको पता होगा बच्चों, हमने ये फॉर्मूला ऑलरेडी डिराइव किया था। वी हैव ऑलरेडी डिराइव्ड दिस फॉर्मूला एंड वी कॉल दिस वेल एज गायरोमैग्नेटिक रेशियो, राइट। तो ये हमने ऑलरेडी प्रूव किया था, वापस एक बार प्रूव करेंगे बच्चों। वी विल राइट मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू एंगुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, due to angular motion of electron, right, around the nucleus. So it is quite simple. Okay, so let's consider this is the nucleus and electron is revolving and radius r with the velocity v. This is the electron, right, it is revolving in this circle, right. So we know that this magnetic moment क्या होता है भाई, मैग्नेटिक मोमेंट होगा आपका, मैग्नेटिक मोमेंट म्यू हो जाएगा आपका I इंटू ए, है ना। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है भाई, मैग्नेटिक मोमेंट होता है आपका I इंटू ए, दैट इज अ क्वाइट सिंपल फॉर्मूला। करंट लूप बनेगा ना, करंट लूप का मैग्नेटिक मोमेंट होता है I इंटू ए। चलिए ठीक है, I क्या लिखेंगे भाई, I लिखेंगे अपने चार्ज बाय टाइम पीरियड, और एरिया क्या लिखा था हमने πr², राइट। चलिए अब इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, तो एंगुलर मोमेंटम होता है इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम L होता है mvr। कितना होता है इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम L होता है mvr। चलिए वेलोसिटी कितना होगा भाई, तो वेलोसिटी होगा आपका 2πr/t, राइट। ओके, चलिए इन दोनों का रेशियो लेते हैं, देन लेट्स सी व्हाट वी विल गेट, μL/L। चलिए μL है आपका E/t πr², और ये वैल्यू आया है आपका m इंटू 2πr/t इंटू r। चलिए r² गया पहले तो, पाई गया पहले तो, t कट बचा E/2m, राइट। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं बच्चों, तो μL/L इज इक्वल टू E/2m, L ऊपर ले लीजिए, तो μL इज इक्वल टू E/2m इंटू L, राइट। और जब आप इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखोगे ना बच्चों, तो वेक्टर जब आप डालोगे दोनों के ऊपर, तो बोथ वेक्टर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन,
दोनों वेक्टर जो है वो नेगेटिव चार्ज के लिए एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं, दैट्स व्हाई देयर इज अ नेगेटिव साइन. सो दिस फॉर्मूला ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, it can be proved by classical mechanics also. There is no proof of this formula in the classical mechanics. This can only be derived by the quantum mechanics formula, right? Okay, so this is all about the magnetism and matter chapter, right? And I hope this chapter is very clear to you. चलिए फटाफट इसको लिखेंगे और फिर खेल खत्म हो जाएगा. Okay.